من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد وآل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پاک پروردگار سورہ فاتحہ کا ثواب مرحوم مغفور سید اقبال حسین زیدی ابن سید صادق حسین کی روح پر سال کرتے ہیں بتوسط چہارد معصومین شہداء کربلا اور اسیران کربلا کے صدقے۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین الملک القدوس السلام المہیمن العزیز الجبار متکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ الحمدللہ الذی جعلنی من امت سید المرسلین ومن المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المصدق والمحمود الاحمد والمصطفى الامجد ابو القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر۔ اللہم عجل فرجہم واہلک عدوہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ایک رمز مودت تھا جسے کھولا نہ گیا، ایک رمز یعنی راز محبت، ایک رمز مودت تھا جسے کھولا نہ گیا، ایمان کے گوہر تھے جسے رولا نہ گیا، ایمان کے گوہر تھے جسے رولا نہ گیا، میزان شفاعت میں سب اعمال تلے، ایک اشک عزا تھا جسے تولا نہ گیا، ایک اشک عزا تھا جسے تولا نہ گیا۔ اللہ اکبر! کیا انعام ہے یہ، کیا سعادت ہے یہ ان عاشقان محمد اور آل محمد کے لیے، استقبال کے لیے، کہ پروردگار جب دنیا سے روح کو رخصت کرتا ہے، بے شک جو اپنے مرکز سے جا کے روح ملتی ہے، ہاں روایات یہ کہتی ہیں کہ روح سہمی ہوئی جاتی ہے، روح ڈری ہوئی جاتی ہے، لیکن جسے غم کے بعد راحت نصیب ہو تو جتنا غم انسان ڈر میں اور خوف میں سہ سکتا ہے، راحت ملنے پر وہ اتنا ہی مسرور ہوتا ہے، اور شفاعت وہ انعام ہے جو خوف زدہ روح کو توفتاً ملتا ہے۔ ایک اشک عزا ہے، ایک اشک عزا ہے جسے تولا نہ گیا، نہ جس کا کوئی مول ہے، نہ جس کا کوئی انعام کی مقدار نہ معیار معین کر سکتا ہے۔ یہ وہ تحفہ ملا کرتا ہے عزاداروں کو، زواروں کو، نیکوکاروں کو۔
अल्लाह के पसंदीदा बंदों। यहां तक आके बात ठहरी तो इमाम रज़ा गरीब की एक हदीस पेश करती हुई चलो कि इमाम अली मकाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, इमाम अली मकाम फरमाते हैं कि यूं तो हर इमाम रसूल नायब रसूल, हर इमाम रसूल और नायबीन रसूल वक्त नज़ा आते हैं, इमदाद करते हैं, आखिरत तक साथ देते हैं, शिफात कराते हैं, लेकिन बिलखुसूस 3 मकामात पर इमाम रज़ा ने कहा कि मैं आऊंगा जहां कोई नहीं आएगा वहां मैं आऊंगा। और वो 3 मकामात इमाम ने कहा, एक जब तुम खबर में मुनकिर और नकीर आएगा मैं आऊंगा। फिर इमाम ने कहा जब पुलिस सरात से गुजरोगे उस वक्त तो अदल इलाही अपने उरूज पर होगा। आखिर रहमत हमेशा अदल पे भारी है। बेशक लवाहुल हम्द पे लिखा है कि मेरी रहमत, मेरे मीजान और मेरे अदल, मेरे हिसाब से मेरी रहमत हमेशा भारी है, लेकिन अदल को कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि अकायद में अगर तौहीद के बाद अदालत पर यकीन ना हो तो फिर अकीदे ही मजबूत नहीं। ठीक है, तो अब कहना ये है कि मीजान जो है गुजरने की जो पुलिस अपना अमल चलेगा, जब कोई नहीं आएगा मैं आऊंगा वहां। और तीसरा मकाम जहां पर नामा अमाल का फैसला होगा कि ये सीधे हाथ में दो या बाएं हाथ में दो। सीधे हाथ वाले जो है वो सीधा जन्नत की तरफ रुख करेंगे और बाएं हाथ वालों की वो सूरह मुल्क में बड़ी तफसील दी गई है। बहरहाल इमाम ने कहा इन 3 मकामात पर जहां कोई नहीं, सिर्फ अदले इलाही होगा मैं आऊंगा। बस क्या करना है तुम्हें, मंजारन फिल हयाती व बादा ममाती, जो मेरा ज़व्वार होगा या वो मेरी जिंदगी में आए या मेरी जिंदगी के बाद, क्योंकि हम वो मजमा हैं जो इमाम की जिंदगी के बाद जा सकते हैं। लेकिन यहाँ की हदीस रुकी नहीं, इमाम फरमाते जो अपनी जिंदगी में आए या अपनी जिंदगी के बाद आए। यानी अगर तुम अपनी जिंदगी में चल के नहीं जा सकते तो ये ना समझना कि तुम दीदार आइम्मा से महरूम हो। तुम नहीं जा सकते ना, वो तुम्हारा जिस्म मजबूर है, तुम्हारी रूह मजबूर नहीं है। अपनी रूह को इंसान इतना कभी करे कि जिस्म मजबूर है, मौला मुसल्ले पे है जिस्म, बस मेरे पैरों में इतनी ही ताकत है कि मैं मुसल्ले तक चल सकूं, तेरी जरी तक, लेकिन मेरी रूह आती। इसे ज़ब्बार कहते हैं। वो ज़ब्बार सिर्फ नहीं होता है कि जो पैसे को खर्चे, जिस्म से मेहनत से जाकर रोजे के जाली को थाम ले, क्या पता वहां जाकर भी कुछ ना मिले, और क्या पता यहाँ बैठ के आंखों को बंद करते हैं और मौला का दीदार नसीब होता है। इमाम ने कहा अपनी जिंदगी में आओ या अपनी जिंदगी के बाद आओ। यानी रूह तो परवाज करती है ना, जिस्म की कैद से निकल कर आ जाओ, मैं आऊंगा। ये शिफाअत वो है, ये शिफाअत वो है जो इमाम के ज़व्वार को नसीब होती है, जो एक अज़ादार को नसीब होती है और जिसका कोई मोल नहीं है। यही हमारी जिंदगी में कम से कम एक नजरिया है, फ़इन्ना माल उसरे युसरा। गच्चे ये कुरान की आयत ये कहती है कि हर परेशानी के बाद राहत। कुरान की आयत का मतलब क्या है, हर मुसीबत के बाद राहत है। यानी बीमारी है तो एक दिन सेहत होगी, फख्र फाका है अल्लाह का फजल होगा एक रोज। आज किसी रिश्तों में कतई रहमी है, कल इंशाअल्लाह सिले रहमी होगी। तो फ़इन्ना माल उसरे युसरा की आप एक तवील फहरिस्त बना सकते हैं, क्योंकि खुदा का वादा है कि मैं हर आसूदगी का देने वाला हूँ, मैं रहम करने वाला हूँ, मैं गुनहगार को बख्शने वाला हूँ। तो यानी तुम्हारी जो मुसीबतें हैं वो एक दिन सब छट जाएंगी। लेकिन हम देखते हैं कि मुसीबत नहीं छटी, मौत हायल हो गई। तो क्या मुसीबत मौत में बदल गई? कोई उसे मौत कहता है, कोई उसे खातिमा कहता है, कोई उसे इंतकाल कहता है और कोई उसे मुलाकात कहता है। जैसे जैसे रूहानी दर्जे आपके बुलंद होते हैं, आपके मायने बदलते चले जाते हैं मौत के बारे में।
कोई कहता है खातिमा हो गया, अब क्या है जिंदगी में रहा क्या। कोई कहता है नहीं इंतकाल हुआ है, इस दुनिया से रुखसत हुए, उस दुनिया में जाकर तो मिलना ही है, क्योंकि 80, 90, 200, 400 बरस तो नहीं सुनी है ना किसी ने जिंदगी, एक रोज तो कयामत आएगी, सब आपस में रूहें मिल जाएंगी। क्या नहीं कहा कुरान ने, सबसे पहले कहा तुम्हें अपने इमाम से मिला दूंगा, तुम्हारी कतार तुम्हारे इमाम के पीछे से शुरू होगी, तुम्हारा जो रसूल है, इसीलिए रसूल ने कहा ना मुझे अपनी उम्मत पर फख्र है, क्योंकि ये उम्मत मरहूमा है। सब नबियों की उम्मतों के नामा अमाल बंद हो गए थे उनकी सांस के बंद होते ही, मगर मेरी उम्मत के बख्शिश के दरवाजे अल्लाह ने आखिरी सांस तक रखे हैं। और ये जो इसाले सवाब की मजलिस है, ये उस बात का मुंह बोलता सबूत है कि उम्मत ने अल्लाह के उस दरवाजे पर जिंदगी भर खटखटाना नहीं छोड़ना है। जिंदगी में अपनी और अपने मरहूमीन के साथ जो रिश्ता है वो यही इसाले सवाब है। अब वरना तो रूह और कोई जबान समझती नहीं, अब रूह और कोई मोहब्बत की जबान नहीं समझती, यही जबान है जो आखिरत में समझी जाती है। तो अगर मैं इतना कह दूं तो क्या गलत है कि यही जबान दुनिया में भी बोला करो, क्योंकि जो जैसी तालीम होगी वैसी ही उसकी तलखीन होगी। सादी सी गुफ्तगू है ये जैसी, वरना तो तलखीन पर अगर आप किसी के आगे पढ़ें बोल तेरा रब कौन है, जिसने रब का कभी नाम ही नहीं सुना वो क्या समझेगा रब की, कौन से रब की बात होगी। जिसने कभी कुरान देखा ही ना हो उसके आगे आप कुरान की आयत पढ़ गए, उसे क्या पता कि वो क्या पढ़ रहा है। जिसने कभी आइम्मा अलैहिस्सलाम के नाम ही नहीं सुने हो उनके आगे आप कितने ही नाम पढ़ दीजिए, वो कहेगा ये कौन लोग हैं। तो तलखीन जो है वही होती है जैसी जिंदगी में तालीम हो। तो जैसी दुनिया जीता है इंसान वही उसकी आखिरत है। दुनिया जिस्म जी रहा है, आखिरत रूह जी रही है, वरना कोई सस्पेंस नहीं है आखिरत। और यही हुस्न है इस्लाम का, हुस्न है इस्लाम का कि कोई चीज आपसे छुपाई नहीं रब ने, कोई भी चीज आपके लिए एक सस्पेंस, जैसे कहा आपके लिए कोई तजस्सुस नहीं है कि मालूम नहीं क्या होगा। यहाँ तक कि जो चीज हम कहते हैं अमल कबूल हो रहे हैं या नहीं ये भी नहीं पता, जी नहीं, इमाम कहते हैं ये भी आपको इल्म है अमल की कबूलियत का, क्योंकि अगर आप बेहतर इंसान बनते हैं इबादत से तो इसका मतलब है आपकी इबादत आपको तासीर अता कर रही है, और अगर आप नहीं बनते हैं तो इसका मतलब है वो एक आदत का इबादत है, फितरत का हिस्सा है, आदत का हिस्सा है। तो फिर कहा आमाल की कबूलियत का भी इमाम ने ये इशारा दे दिया कि नहीं नहीं नहीं, जिंदगी में बदलाव बेहतरी की तरफ, गुनाहों में, जिसको इमाम ने वाज़े करके बताया, गुनाहों में कमी और नेकियों में इजाफा। ये अगर जिंदगी का पैटर्न है, डेली पैटर्न है अगर इंसान का, कि गुनाहों में कमी आती जाए, नेकी में इजाफे आते चले जाए, तो समझना कि तुम्हारी इबादत तक कबूल है। तो सबसे बड़ी बात इंसान की कि मौत भी आ जाए तो वो उसको उसके कॉनोटेशंस बदल देता है। कोई उसे खातिमा कहता है, कोई उसे इंतकाल कहता है कि यहाँ जो बिछड़े हैं वो वहां मिलेंगे, और कोई कहता है कि वहां मिलेंगे तो मुलाकात है, ये मौत रब का वो दीदार है कि जो जिस्म अपने पैरामीटर्स में कैद था आज रूह आजाद है। अब रूह आजाद है तो रूह ने अपनी फितरत अभी भी नहीं छोड़ी। एक तो वो रब की मुलाकात को गई, वो एक दारुल आखिरा, लेकिन उसने दुनिया से भी अपने लिंक्स नहीं छोड़े। वो फितरत थी ना, बरसा बरस जिन लोगों के दरमियान रहा, वो रूह पलट पलट कर उन्हें देखती है, अपने लवाहिकीन को देखती है, और एक ही मुंतज़िर, एक ही इंतजार है, क्या मेरे लिए कुछ हदिया है तुम्हारे पास। बस ये वाहिद जुबान है जो वो समझती है, ये वाहिद रिश्ता है जो हम अपने मरहूमीन की नमाज़े जनाजा में उसको एक एश्योरिटी दिलाते हैं, जाओ तुम रुखसत हो, खुदा हाफिज व नासिर, मैं तुमसे अपना रिश्ता बाकी रखूंगा नेकी और खैरात के जरिए। आप तर्जुमा जब पढ़ते हैं तो ये जुमले आप अदा करते हैं, तुम जाओ, तुम बेफिक्र जाओ, मैं नेकी और खैरात से रिश्ता रखूंगा। इसीलिए तो कहा तरबियत में अपनी 3 चीजें शामिल करो, 3 चीजें शामिल करो। बाकियत सालिहात आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं तो एक सरसरी गुफ्तगू कर रही हूँ कि ऐसा इल्म छोड़ जाओ कि तुम्हारे बाद जब तुम्हारी दी हुई सीख, तुम्हारे दिया हुआ जखीरा, बुरहान, दानाई
की गुफ्तगू कोई करे तो उसके सवाब में तुम शामिल हो। कोई ऐसा पानी, कोई ऐसा फैज़ आम लोगों के लिए छोड़ जाओ कि कहीं कोई वुजू कर रहा हो, कहीं कोई इबादत कर रहा हो, उसकी इबादत में एक छोटा सा जर्रा हमारा भी हो। और फिर ऐसी औलाद छोड़ के जाओ, क्योंकि खुदा की शान ये है कि हर रिश्ता अपनी जगह मुक़द्दस और मोहतरम, लेकिन ये जो वालिदैन और औलाद का जो रिश्ता है, हर रिश्ता खत्म हो सकता है, हर रिश्ता दूर हो सकता है, मगर ये अल्लाह ने वजूद के हिस्सों में से जब हिस्सा निकाला है तो कहा तुम्हारी औलाद तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी औलाद को तुमने सिखाया क्या है, क्या सिखाया है। मौला ने फरमाया 3 चीजें सिखा दो, कभी नहीं दूर जाएगी, कभी नहीं दूर जाएगी, कभी नहीं। एक कुरान सिखाना जरूर, कुरान ना छोड़ना कभी, कुरान जरूर सिखाना। दूसरे विलाय अहले बैत सिखाना, अली की विलायत सिखाना। अली की विलायत आएगी तो रसूल की रिसालत आएगी, अली की विलायत आएगी तो वक्त के इमाम की मवद्दत आएगी, नुसरत के लिए तैयार होगा। विलायत सिखाना। और तीसरे गमे हुसैन सिखाना। गमे हुसैन अगर सिखा दिया तो कभी गुमराह नहीं होंगे, कितने भी दूर जाए, क्योंकि हुसैन की औलाद वो थी जो 1 नहीं 40 बरस तक बाप को रोती रही और ईसाले सवाब करती रही। कहा जब ये घुट्टी में होता है तो कहा बस ये मगफिरत है, ये इनाम है, ये दीदार है, ये मुलाकात है। तो मौत भी आती है तो ये कहते हैं फ़इन्न मअल उसरि युसरा, ये मुसीबत के बाद राहत मिली है, जिस्म को राहत मिली है, जिस्म खैद से आजाद हुआ, और रूह को राहत मिली है कि रूह ने दीदार रब किया है, रूह ने दीदार मुस्तफा किया है, रूह ने वो अली मुश्किल कुशा जिसका सिर्फ तसव्वुर था कि मौला आते हैं, मौला आ जाए तो कैसा लगता है, ये मसरूर रूह है, ये उसके लिए खुशी का मौका है, ये उसके लिए रहमत का मौका है। सबकी शिफात है, सबकी शिफात है, सबके लिए दर्जात है, हाँ, लेकिन चंद लोगों की शिफात नहीं होगी। हाँ, किनकी शिफात नहीं होगी? क्यों नहीं होगी भाई, इनकी शिफात क्यों नहीं होगी? कहा वो उनसे पूछो, वो जहन्नम में क्यों गए, पूछो उससे, वो खुद कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम बेनमाजी थे। कहा आशिक़ हुसैन थे? कहा हाँ, तो हुसैन ने जान नमाज के लिए दी। कहा आशिक़ रसूल थे? तो कहा रसूल तो लाया ही अल्लाह का कलाम था। कहा अली को पुकारते थे? तो कहा अली तो पैदा भी काबे में हुआ, दुनिया से भी गया तो मस्जिद में गया, तो फिर जब ताल्लुक ही अली के रब से नहीं रखा, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। फिर और क्या मसाइल थे इनके साथ? वलम नकु नुतामल मिस्कीन, मिस्कीन को धक्के देके निकाला करते थे। अल्लाह ने कहा तुम्हारी इबादत तुम्हें तो दर्जे दिला सकती है, मगर किसी की दिल शिकनी, किसी की बेइज्जती, किसी की रूह को मजरूह करना, ये मेरे दिल को दुखाती है, मेरे दिल को दुखाती है। अल्लाह अकबर। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम मिस्कीन को धक्के देते थे, उसको खाना नहीं खिलाते थे, यानी उसको हकीर जानते थे। फिर और क्या मसाइल थे? वलम नकु नुतामल मिस्कीन, और वकुन्ना नखुज़ु माल खाइज़ीन, लोगों की देखा देखी गुनाह करती थी, हमें दिलचस्पी भी नहीं थी कुछ गुनाहों में, जो कि हकीकतन मैं आपको कह सकती हूँ कुछ चीजें हम मजबूरन आके करने लगते हैं और कहते नहीं माशरा ऐसा है, हालात ऐसे, नहीं, लोगों की देखा देखी में आपने अपनी आखिरत क्यों खराब की? कोई अपनी दुनिया नहीं खराब करता किसी के लिए, कोई अपनी आखिरत अगर खराब करे तो इसके लिए तो कोई जुमले ही नहीं होने चाहिए वजाहत के लिए, ठीक। वकुन्ना नखूज़ु माल खाइज़, दूसरों की देखा देखी गुनाह करते थे। और फिर क्या करते थे? आखिरत पे यकीन नहीं रखते थे। हम कहते थे बस जो भी है ठीक है, देखा जाएगा, आखिरत पे यकीन नहीं करते थे। फिर क्या हुआ? हत्ता अताकल यकीन, मौत आ गई एक दिन और हमने सोचा था कि ऐसा नहीं होगा, हम सही हो जाएंगे, हम माफी मांग लेंगे, मगर माफी मांगने से पहले मौत हायल हो गई। और जब हम वहां पहुंचे तो पता ये चला फमा तनफ़हु शिफ़ाअत शाफ़ीन, कि हमारी शिफात में उहदे पड़ गए, हमारी शिफात में गिराव पड़ गई। जिन जिन हस्तियों को शिफात का हक था उन्होंने कहा परवरदिगार हम कैसे कराएं इनकी शिफा जब इनके आमाल में कुछ वजन नहीं है। बस इसी मंजिल पर आके मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम करूं कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, नेकियां तो थी नहीं जिनके वास्ते भी थे,
गुनाह तो इतने थे कि उनको लौटाते रहे, रद्दे मजालिम आप जानते हैं, दुनिया में ही दे दो, माफिया ले लो, सब कुछ कर लो, नहीं तो वहां देने पड़ेगी। तो जितनी नेकियां थी वो देते रहे, जब नेकियां खत्म हो गई तो उनके गुनाह खुद ले लिए। अब क्या करें, कोई वसीला नहीं। जब सारे वसीले टूट जाते हैं, एक वसीला नजर आता है कि शहजादी आपने वादा किया था जो आपके बेटे का अज़ादार होगा आप उसकी शिफात कराएंगे। बस अज़ादारा ने इमाम के पास सिवाय गमे हुसैन के, सिवाय अहले बैत के वसीले के, ऐसी मंजिल पर भी अगर कोई शाफी नजर आता है तो वो फातिमतुज़ ज़हरा नजर आती है। बीबी उस मंजिल पर है, शहजादी उस मंजिल पर है कि जिसके नजरों के आगे तमाम तर करबला, तमाम तर नजफ, तमाम तर मदीना, तमाम काज़मैन, तमाम सामर्रा, तमाम तूस, हर एक का मसाइब बयान कर दिया गया था। शहजादी चाहती तो हाथों को उठाकर एक शब्द में सबकी तकदीरें बदल देती, एक शब्द में चाहती तो रब से कहती, रब तेरे दीन के लिए कोई और सबील पसंद कर। लेकिन शहजादी ने कहा नहीं, इबादतों के साथ जब कुर्बानी दी जाती है तो दर्जात इसी में मिलते हैं। लिहाजा शहजादी ने अब इंतजाम शुरू किए। तकदीर नहीं बदली बल्कि तदबीर बदली, तैयारी की। हुसैन को आगोश से करबला के लिए तैयार किया, ज़ैनब को आगोश से नुसरत बिरादर के लिए तैयार किया, और किस तरह से फातिमतुज़ ज़हरा अपने बेटे का कफन तक सीन के संदूक में रख कर गई। और जब वो मंजिल आई कि फातिमा की दी हुई अमानत को फिज़ा ने बीबी ज़ैनब के हवाले किया, फिज़ा ने बीबी ज़ैनब के हवाले करना चाहा, तो हुसैन ने कहा फिज़ा अम्मा के तबरुकात लाना और इस तरह से लाना कि ज़ैनब ना देखने पाए, खामोशी से लाना। लेकिन जब फिज़ा ला रही थी, ज़ैनब ने कहा क्या ले जा रही हो? कहा मौला ने मंगवाया है ये लिबास से कोहना का, अच्छा ये वो कुर्ता है जो अम्मा सीती जाती थी और रोती जाती थी। अल्लाह अकबर, जब ये लिबास तार तार हो रहा था तो अम्मा ही की आवाज आई थी, 1900 जख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल, हुसैन तड़पता है खाक पर। शहजादी ने देखा जमीन करबला को तलातुम हुआ, आसमान से आंधियों में बदल गया। अल्लाह अकबर, बीमार बेटा गश्ती आलम में था, शाना हिलाकर कहा उठो सैयदे सज्जाद, देखो माजा या नशेब में नजर नहीं आ रहा है, उठो सैयदे सज्जाद, मेरा दिल हौल रहा है, जमीन करबला सर्द हो रही है। देखा बीमार ने खैमे का पर्दा उलट कर तो कहा फूफी अम्मा नशेब में नहीं, आसमान में सलाम करो, के नैज़ा पे सलाम करो। अभी ये मुसीबत ज़ैनब को गवारा न थी कि कुछ आवाजें आई, खैर तो है, ये आवाजें कैसी? कहा अब बाबा के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। ऐ माए हुसैना, अंगूठी काट ली गई, अंगुश्तरी समेत उंगली काट ली गई, लिबास तक घसीट लिया गया, लेकिन मेरी अम्मा के हाथ का सिला हुआ कफन वो वाहिद कुर्ता था जो हुसैन के बदन पर रहा। अला लानतुल्लाहि कौमिल ज़ालिमीन, फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू मुनक़लिबून। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार आलम, कुरान का सवाब, तस्बीहात का सवाब, जो कुछ भी जिक्र हुआ है, जो नजर नियाज, जो मजलिस, मातम, गिरिया, इन तमाम पुरसे जनाब सैयदा की नजर और इस इल्तिमास से कि शहजादी
مرحوم مغفور سید اقبال حسین زیدی ابن سید صادق حسین زیدی ہماری جانب سے بی بی درجات کو بلند کیجیے. دعا التماس دعا ہے مغفرت کی اعلیٰ پہ جگہ دیجیے. مبارکین کو صبر عطا کیجیے. دنیا میں کوئی غم اہل بیت کے غم سے بڑا نہیں ہے، اس لیے ہم بدل لیتے ہیں غم اپنا غم شبیر سے، پوچھ لیتے ہیں اپنے آنسو چادر تطہیر سے. سورہ فاتحہ برائے سال ثواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم.